Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and I am back again in this video with the explanation of another chapter from your first flight book of class 10th NCERT, chapter number 2. This is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So, you all must be knowing about Nelson Mandela. He was one of the greatest freedom fighter of South African country, and in this chapter he has described his whole journey, that how he make South Africa free from the slavery and apartheid system. So we are going to discuss here the whole journey and it is a kind of autobiography uh, from the Nelson Mandela's autobiography. It has been extracted. Okay, so before we read, let's see what had been given for us. Apartheid is a political system that separates according to their race. Can you say which of these three countries named below had such a political system until very recently? अपार्थाइड मीन्स एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे लोगों को उनके नस्ल या उनके रंगों के आधार पर बांटा जाता हो, उनसे भेदभाव किया जाता हो. दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. सो as we all know that South Africa was the latest country who recently got free from this apartheid system, and Nelson Mandela played a very major role in getting free of this political system from South African country. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. वो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण की बात करते हैं, द इनॉग्रेशन की बात. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? और ये क्या ओकेजन होगा, कौन सा अवसर होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं? ये अवसर था नन अदर देन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने की ये कहानी है, और नेल्सन मंडेला काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद वहाँ के पहले अश्वेत मीन्स जो गोरे ना हो, मीन्स ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बने. और ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल उस टाइम के न्यूज़पेपर में छपा था. लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. लगभग 300 सालों से ज़्यादा वाइट रूल मीन्स गोरों के रूल के बाद नेल्सन मंडेला आज पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. पहला democratic election. What do you mean by democracy? You must have been studied in your civics part that democracy is a kind of government which is for the people, by the people and of the people. तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो पहला चुनाव कराया गया उसमें नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति वहाँ के बन के निकले. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today. Pretoria is itself, the South Africa is called Pretoria. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. लगभग 140 देशों से ज़्यादा के लोग उस सभा में या उस सेरेमनी में आए थे. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. और नेल्सन मंडेला अपने भाषण में क्या कहा कि अब से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सुंदर देश, ये ब्यूटीफुल कंट्री किसी का दबाव सहे या किसी के द्वारा दबाया जाए. ऑप्रेस एक वर्ड है बेटा, ऑप्रेस मीन्स होता है टू पुश समवन, किसी को दबाना, कुचलना. इसी में अगर हम ER सफिक्स लगा देंगे सो इट विल बिकम ऑपरेसर मीन्स दबाने वाला, और अगर हम OR सफिक्स लगा देंगे इट विल बिकम ऑपरेसर मीन्स जिसको दबाया गया है. ओके. Jubilant success on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So it was a very happy day in the history of South Africa. लाखों लोग शहर पे थे और उन लाखों लोग अलग अलग तरह के, जैसे ब्लैक भी थे उसमें, वाइट्स भी थे, कलर्ड पर्सन्स भी थे. तो ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही तरह के सिस्टम के लोग वहाँ पे मौजूद थे. एंड दे वर all together enjoying the success and freedomness of South Africa. Okay, so let's start the chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil.
सो 10 मई के दिन डॉन्ड मीन्स बेटा टू वर्ड्स आर देयर, DAW एंड डॉन एंड DUSK डस्क। डॉन एंड डस्क दोनों का मतलब भोर होता है, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है। जो सुबह का भोर होता है दैट इज़ कॉल्ड डॉन, एंड जो शाम का भोर होता है उसको कहते हैं डस्क। सो 10 मई की सुबह में बहुत ही चहचहाता हुआ और क्लियर सुबह हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से उनको लगातार बहुत ही अच्छे अच्छे डिग्निटरीज वर्ल्ड लीडर्स के मैसेज आ रहे थे, क्या उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि इनका सन ही इज़ अबाउट टू टेक द स्वेरिंग ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ पूरे दुनिया भर से आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, और ये जो उद्घाटन होगा, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, ये साउथ अफ्रीका की धरती पे पहली बार ऐसा होगा कि इतने बड़े मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। और वो पूरी की पूरी सेरेमनी कहाँ पे हुई? एक अच्छी सैंडस्टोन से बने एम्फी थिएटर में, जो कि वहाँ की यूनियन बिल्डिंग्स में प्रिटोरिया में बनाई गई थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और दशकों तक ये जगह इस जगह पे कौन अपना हक जमाया हुआ था या किसका शासन यहाँ चलता था? वाइट सुपरमेसीज, जो गोरों का यहाँ पे राज था। एंड नाउ it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। non-racial government जो नस्लीय भेदभाव ना करे, फर्स्ट डेमोक्रेटिक मीन्स चुनी हुई सरकार, और अभी तक इस पर गोरों का सरकार थी या वाइट लोगों का अधिकार था, लेकिन आज के बाद यहाँ पे सतरंगी लोग रहेंगे। रेनबो इन द सेंस दैट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विल स्टार्ट लिविंग हियर, एंड इट इज़ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। इंस्टॉलेशन मतलब उनका गठन होगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, और उस बेहतरीन क्षण में वो अपनी डॉटर जिनानी के साथ थे। ऑन द पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president। डी क्लर्क को पहला सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके बाद देन थाबो म्बेकी वॉज sworn in as फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और थाबो म्बेकी को फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब नेल्सन मंडेला जी की बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब उनकी बारी आई शपथ लेने की, तो उन्होंने अपनी शपथ ली, और उन्होंने ये शपथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पालन करेंगे, और अपना पूरा का पूरा जीवन साउथ अफ्रीका के गणतंत्र को बनाए रखने में और वहाँ के लोगों को और अच्छा जीवन उनको प्रदान करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो कोई भी असेंबल्ड गेस्ट थे मीन्स वहाँ पे जमा हुए गेस्ट थे, और जितने भी दुनिया में लोग देख रहे थे उनको मैंने कहा, व्हाट ही सेड, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। ये कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में अभी तक बहुत लंबे समय तक एक ऐसे लोगों का अधिकार था या ऐसे लोगों का राज था जो कि ह्यूमन डिजास्टर कहा जा सकता है, और किसी भी ह्यूमन डिजास्टर के बाद एक ऐसा समय आता है जहाँ पे मानवता पनपती है और मानवता का विकास होता है। सो ही इज़ कंसिडरिंग दिस गोल्डन पीरियड, ही इज़ रेफरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम एज द गोल्डन पीरियड ऑफ साउथ अफ्रीका। वी हियर मीन्स द ब्लैक पीपल्स, यहाँ पे वी का मतलब बेटा है ब्लैक पीपल्स। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil। आउटलॉज मीन्स जिसको दरकिनारे कर दिया जाता था या जिसको कोई भी इम्पोर्टेंस ना दिया जाए। तो जैसा कि पहले साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल्स थे उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, आज एक ऐसा समय आया है कि उन्हीं ब्लैक लोगों में से एक उस देश का सबसे बड़ा सुपरमेसी बनने वाला है, सबसे बड़ा वहाँ का प्रेसिडेंट बनने वाला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace,
एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वो वहाँ पे आए हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट को अपना धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं और वो इस पूरे के पूरे प्रोसेशन को, इस पूरी की पूरी गैदरिंग को और कुछ नहीं बल्कि एक सामान्य सी जीत बताते हैं। किसके ऊपर? न्याय के ऊपर, शांति के ऊपर और मानवीय डिग्निटी, मानवीय सम्मान के ऊपर एक छोटी सी जीत बताते हैं। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अगर आप यहाँ पे इस वर्ड की मीनिंग देखें बेटा, इमांसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह के अवरोध से आप मुक्ति पा जाएं। तो यहाँ पे अंततः उनको एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है जिसमें वो अपने आप को स्वतंत्र करने की शपथ ले रहे हैं। किससे? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्रीवेशन मीन्स दमनकारी नीतियों से, सफरिंग मीन्स भी एक हिसाब से दमनकारी ही हुआ, जेंडर मीन्स लिंग के भेद पर और भी अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन से उनको मुक्त होने का समय आ गया था। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। और ऐसा अब कभी नहीं होगा कि ये ब्यूटीफुल लैंड यहाँ पे किसी का भी दबाव झेले या किसी के द्वारा अपने ऊपर दबाव महसूस करे या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा अब कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस a human achievement, let freedom reign, God bless Africa. So he finished his whole speech with this particular sentence कि let freedom reign. Reign means to rule, reign means शासन करना। तो कहता है स्वतंत्रता को शासन करने दो, God bless Africa. He blessed Africa and make a wish for it. I hope everything is pretty clear to here. Now let's move to the next paragraph. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही समय बाद जहाँ पे ये प्रेसिडेंशियल स्वर्ण की सेरेमनी चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने आसमान में देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ये सारे अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर और काफ़ी वी शेप बना करके अपने अपने जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये ना केवल मिलिट्री के जो डिसिप्लिनरी होती है या मिलिट्री का जो अनुशासन होता है सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन इस चीज़ का भी था। किस चीज़ का? मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और वो भी किसके प्रति? जो नई चुनी हुई सरकार है, आज़ादी से चुनी हुई सरकार और पूरी तरह से नियमतः चुनी हुई सरकार जो है उसके प्रति मिलिट्री का अनुशासन और उसकी ईमानदारी को भी ये डिराइव कर रहा था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही क्षण पहले क्या हुआ था, जो उस साउथ अफ्रीका देश के डिफेंस के हाईएस्ट जनरल और पुलिस मेंबर्स थे, उनके छाती पे रिबन्स लगाए गए या उनको ढेर सारे मेडल्स वगैरह पहनाए गए, और उन दिनों के मेडल्स जो अब जा चुके थे उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को प्लेज किया, अपने लॉयल्टी के लिए, ईमानदारी के लिए शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful means उनके दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी, ये मतलब unmindful means कि उनको ये बिल्कुल ज्ञात था इस बात का कि अगर ये आज से कुछ दिन पहले की बात होती तो ये मुझे सैल्यूट करने की जगह अरेस्ट कर लेते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और आसमान पे एक इम्फला जेट ने क्या किया? स्मोक मीन्स धुआं छोड़ा, जिसमें से ढेर सारे कलर्स निकले जो कि थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, और ये सारे कलर्स मिल करके एक नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग का फॉर्मेशन करते हैं।
The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelil I Africa and the blacks singing They Steam, the old anthem of the Republic. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know द वर्ड्स बाई हार्ट। और उस दिन गोरों ने अपना अलग नेशनल एंथम पढ़ा और ब्लैक्स ने भी अपना अलग नेशनल एंथम पढ़ा और दोनों ने साथ मिल के दोनों नेशनल एंथम को पढ़ा। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि द नेशनल एंथम ऑफ ब्लैक्स वर नॉट बीइंग लिरिकली रिमेंबर्ड बाई द वाइट वंस। जो गोरे थे उनको एक भी लिरिक्स नहीं याद रही होगी और उनको ये भी नहीं पता होगा कि आने वाले समय में उसका एक एक शब्द उन्हें बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। वाई? बिकॉज नाउ देयर इज द डेमोक्रेटिक रूल इन द साउथ अफ्रीका। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और जिस दिन ये पूरी की पूरी सेरेमनी हो रही थी मैं बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर था क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. और ये 20th सेंचुरी के पहले ही दशक की बात थी और उनके जन्म से पहले वहाँ पे जितने भी वाइट स्किन पीपल्स थे उन्होंने वहाँ के ब्लैक लोगों के ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। उनके ऊपर जो डार्क स्किन पीपल्स थे उन्हीं के मातृभूमि पर उनके विरोध क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। और जिस तरह की पद्धति वहाँ पे गोरों ने बना रखी थी उसने दुनिया के इतिहास के सबसे कठिन समाज को जन्म दिया और बहुत ही ज़्यादा अमानवीय, इनह्यूमेन मीन्स अमानवीय समाज वहाँ पे सभ्यता पलती रही जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और सबसे इनह्यूमेन और सबसे हार्शेस्ट सोसाइटी के रूप में जाना जाएगा। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और अब लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मीन्स फ्रॉम 1990 टू 2000 के टाइम में एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। और नेल्सन मंडेला अपनी एज को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि वो खुद 80वें साल में चल रहे हैं, 8th डिकेड में चल रहे हैं, 8वें दशक में चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया गया है, ओवरटर्न्ड फॉरएवर, और उसे रिप्लेस कर दिया गया है एक नए सिस्टम से जहाँ पे जिसकी पहचान होगी राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता से उनकी पहचान होगी, ना कि उनके चेहरे के कलर और ना कि उनके शरीर के स्किन के कलर के बेसिस पे। मीन्स दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रीडम्स एंड राइट्स ऑफ देयर कंट्री रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। मीन्स जो नस्लीय भेदभाव वहाँ पे था वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है।